Hey everyone, welcome to my show CA Beyond Practice. I am your host CA Harsha Agarwal, and on my podcast, you will be hearing some amazing and successful stories of CA who have done something beyond practice. I'm really excited for this podcast because this is my first ever show and also my first guest who I know very personally who has done something really outstanding and beyond box and achieved success. I'm talking about CA Deepak Agarwal, who is a passionate guy, an innovator, and who has always challenged himself to do something different. I can vouch on his success because I have seen his story personally and has seen him growing step to step through thick and thin. Without wasting time, let me invite my guest so that we can hear his success story from the man himself. A very warm welcome, Deepak, to my podcast. And let's start. My first question would be take me through your flashback of your CA journey. आपने क्या सोचा जब आपने CA किया? What were your thoughts? Just a rewind which would make you also happy. Thank you, Asha, for inviting me to your podcast. My pleasure. What you are doing, CA Beyond Practice, because बहुत इनको लगता है कि CA about only professional field है. But I'll tell you about my interesting story. It started in the college days. Um, I'm grateful that I did my CA, and thanks to one friend who inspired me to be in this CA profession. He filled up a form for me. He wanted me to give a company in the tuition, and we did together CA tuition, and I cleared my CPT foundation inter level as well. And then for the final I was not sure. मैंने ENY में हमारे कॉलेज में Xavier's I was and got an opportunity to do internship, and that excited me when I went there to see what is a CA profession, how respectful and everything. And then I chose to do the final, and I did my CA, and I qualified and worked with Ernst & Young for 2 years. And then my passion from the school days happened into marketing. तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी सीए हो गया अब अपने पैशन को फॉलो करते हैं. Amazing, amazing. So this means your first exposure was ENY, and I mean, how was those days? I mean, it must be your first exposure to the corporate world. I'm sure you must have done articleship, but getting into this big four as a intern, and that too outside city. I mean, you're from Kolkata and you went to Delhi. Correct. So this must have been something very exciting in those, old days. So just give us a more glimpse to our viewers, जो लोग अभी सीए कर रहे हैं एंड जिनका एस्पिरेशन रहता है बिग फोर में जाने का. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बिकॉज यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप एंड देन यू वाज कंटिन्यूइंग एज अ फुल टाइम जॉब फॉर सम टाइम. So मेरा एक मैसेज है because right now we have 3.5 lakh to 4 lakh CAs and many people have to go under articleship जो CA में must है. ट्रेनिंग आपको क्या करता है ना काफी अच्छा एक्सपोजर देता है एंड यू गेट टू नो द थिंग्स विच आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे सीए कोर्स में ये मस्ट एक फीचर है. राइट. बट एक चीज जो पार्ट है मैंने कैलकाटा में आर्टिकलशिप की थी वन ऑफ द फर्म इन केमैक स्ट्रीट नियर टू माय कॉलेज. पर जब मैं ईएनवाई गया ना तो मुझे एक्चुअल आर्टिकलशिप क्या होती है उसका एक एक्सपोजर मिला. आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला कि रेंट का ऑडिट कर लो एंड मेरे हिसाब से रेंट ऑडिट मतलब होता है कि 12 महीने रेंट कंपनी ने पे किया इतना ही चेकलिस्ट है. एंड आई वेंट टू हिम इन 15 मिनट के सब हो गया. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो उसने मेरे को जो सिखाया 1 घंटा पूरा बोर्ड रूम यूज करके ड्यूरिंग दी जॉब मैंने वो सीखा कि AS19 लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, एंड उसकी ऑडिट करने के लिए फिर 3 दिन लगे. तो वो एक स्मॉल एस्पेक्ट को आपको कितना लेवल पे एक्सपोजर मिलता है वो एक मतलब अल्टीमम मैं बोलूंगा एक्सपोजर. So, as my show is about CA Beyond Practice and we are celebrating CAs जिन लोगों ने कुछ अलग फील्ड में कुछ कर दिखाया है. So, I'm very curious to know why switching lanes from CA to marketing.
So, Harsha, when I was in class 9, 10, I got exposure into media and I did some kind of practical internship, you can say, in a ABP house called TTIS, where I used to take interviews of celebrities and I keep on going. And it excited me कि मेरे को ना मीडिया में जाना है. But coming from a Malwari family, you can understand, वहाँ पे मीडिया जर्नलिज्म को बहुत अच्छा एक्सपोजर या जॉब ऑप्शन नहीं बोलता है. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने क्लास 11 12 में आई गॉट अ चांस इन एबीपी टू वर्क एंड वन ऑफ माय मेंटर गाइडेड मी कि इवन इफ यू डू बीकॉम या फिर एनी अदर फील्ड यू कैन स्टिल कम बैक बट एटलीस्ट फैमिली विल फील हैप्पी कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ट्रस्ट मी टुडे आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई होल्ड अ सीए डिग्री. मैंने मेरे फ्रेंड को कंपनी देते देते सीए सीएस भी किया. आईसीडब्ल्यूआई भी मैंने इंटर तक क्लियर किया. सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ लेवरेज कि आज के दिन अगर मैं कहीं पे बैठा होता हूँ ना एंड व्हेन आई से आई एम अ सीए इट गिव्स अ रिस्पेक्ट इन द आईज एंड दैट इंडिया में जितने सीएस हैं उनके लिए एक रिस्पेक्ट अलग होता है. बट हाँ वो कहता है ना दिल मांगे मोर, दिल मांगे अपना पैशन. तो मेरा पैशन मार्केटिंग था. आई वॉज वर्किंग विद ENY. वन ऑफ माई फ्रेंड started something in media and that excited me and I came into the SMS line and I invested a small amount but that gives me exposure. And मैंने अपना ENY जॉब छोड़ के अपनी फर्म स्टार्ट की थी एंड साइड बाय साइड सोचा था ये बिजनेस भी चल लेगा. बट वो कहता ना पैशन आपको पुल करता है हमेशा. और उस पैशन ने मेरे को ऐसा पुल किया कि टुडे आई रन अ कंपनी 1X Solution where it has been a 13-year-old journey and we work with 5,000 clients in India. We have started in Kolkata. Now we have office in Bangalore and we serve pan-India clients like Starbucks, Amazon, all those things. Yeah. Amazing, amazing. Also, congratulations to you for achieving 40 under 40, Thank you. where ICI honored the top 40 people in Pan India who is doing something very excellent in different fields, similar to our podcast show. So, a big congratulations to you on that. सो मैंने भी जब सीए किया था उस समय शायद इतने ऑप्शंस भी नहीं थे. लोगों को था कि सीए करके प्रैक्टिस ही करना है. बट टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ एंड अब काफी ऑप्शंस है लोगों के पास. सम ऑफ माय फ्रेंड्स आई नो पर्सनली हु इज यू नो योगा प्रैक्टिशनर, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, या फिर कोई अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है. तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सीए के लिए एस्पायर कर रहे हैं, करियर के लिए कोई देयर इज नॉट अ गाइड बुक टू होम टू गो, बिकॉज अभी भी शायद लोगों के मन में ये है कि सीए मतलब प्रैक्टिस. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस दोज पीपल? See, Arsha, my thought on that one is very different because I have met across 15 years. मैंने 2010-11 में अपना सीए कंप्लीट किया था एंड बहुत जन से मिला है, बहुत जन अलग अलग फील्ड में. बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक व्हेन वी हियर सीए वी ऑल अंडरस्टैंड एज अ लेमैन इनटू अ फाइनेंशियल और अकाउंटिंग थिंग. तो सीए अगर आप कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में एक्सपर्टाइज कर सकते हो. बट जैसे लास्ट ईयर मेरे को आईसीआई ने अवार्ड दिया कि सीए जो डिफरेंट फील्ड में है बट उन लोगों ने अपने लेवल पे एक्सपर्टाइज किया. सो एज अ स्टार्टअप आई सी लॉट ऑफ पीपल जो स्टूडेंट है एंड सीए सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स या पापा ने बोला है वो इसीलिए सीए करना चाहते हैं. विद माय फैमिली मेरे पापा से कोई प्रेशर नहीं था मुझे कि तुम्हें सीए करना है कि एमबीए करना है. माय पैशन वाज दिस बट आई वांटेड कि हाँ होता ना स्टेबल लाइफ की एक डिग्री हो, शादी हो जाएगा, एवरी लाइफ इज सेटल्ड. सो मैंने भी सोचा कि ठीक है सीए कर लेता. फ्रेंड को कंपनी देने के लिए बोलने की चीज है बट ऑफकोर्स वो अंदर से एक पता था कि सीए डिग्री में जो रिस्पेक्ट है वो बाकी चीजों में नहीं है. सो इट्स गुड टू डू अ सीए. बस हाँ आज के दिन में लोग बहुत जन क्या कर रहे हैं ना कि जिनका पैशन नहीं है अकाउंटिंग करने का, वो अगर सीए करके ट्राई कर रहे हैं कि उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना. सो आई वुड सजेस्ट टू दो स्टूडेंट प्लीज डोंट डू दैट. अगर आपका पैशन है कि आपको योगा टीचर बनना है, आपको सिंगर बनना है, ठीक है, आपने सीए कर लिया है, स्टिल यू कैन स्विच ऑन द लेन, यू कैन फॉलो योर पैशन. So, when now you introduce yourself to clients, obviously you must be saying you are a CA, but about marketing business mein hai. So, how do people react or respond? Do they give you any suggestions? Ki you should have done
you should have gone into practice. So how you take those comments and how do people react? So हर्षा, लोगों का काम है कहना, एंड मैं जिस फील्ड में प्रोफेशन में हूँ, मतलब वहाँ तो मुझे यहाँ तक सुनने को मिला है, बिकॉज आई स्टार्टेड इनटू एसएमएस एंड आई रन अ डेटा कंपनी वेयर वी हैव बिल्ड 60 करोड़ डेटास इन इंडिया. सो जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं अरे सीए करके तुम एसएमएस ही करना था तो सीए क्यों किया. ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने सीए डिग्री की है तो आप अपना पैशन को फॉलो नहीं कर सकते. सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोगों ने इंडिया में सुना है सचिन तेंदुलकर हु इज अ ग्रेट प्लेयर. वो फुटबॉल खेलना चाहते थे बट क्रिकेट में आए एंड ही पैशनेटली डिड समथिंग इन क्रिकेट. सो अगर आपका पैशन वो है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो. इट्स नॉट अ एज कि आपको कब करना है. बट हाँ, अगर आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्टाइज करनी है, सीए इज द राइट डिग्री. माय सजेशन वुड बी कि आप स्टार्ट करो अपना प्रैक्टिस. देयर इज अ एम्पल थिंग व्हिच कैन बी डन इनटू अ सीए प्रोफेशन दैट पीपल कैन आल्सो चूज. So, what struggles you faced in establishing your company, One It Solutions? I'm sure now it's 14th year, so there must be up and down. So, how you handle those, and आपकी सीए डिग्री ने आपको कैसे हेल्प किया यहाँ पे सिचुएशंस को हैंडल करने में एंड गेटिंग सक्सेस. सो एक चीज बहुत अच्छा हुआ, टू बी ऑनेस्ट, इन ईएमआई मुझे एक्सेल जो सिखाया गया ना, मतलब आई थिंक दैट बिकेम माय एसेट. एंड मैं जब कंपनी स्टार्ट किया तो मेरे ईएमआई में हमारा एक कल्चर होता था कि आपके जो भी एक्सेल के फॉर्मेट होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, वो पर्टिकुलर फॉन्ट एंड फॉर्मेट में होता है. एंड वी यूज्ड टू हैव हर्षा मल्टीपल एक्सेल फाइल, वी लुकअप लगाया जाता था. मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर हमारी टीम कोई कोको कोला की ऑडिट कर रही है तो 200 जन इन्वॉल्व हैं. स्पेंसर की ऑडिट कर रही है, Wow, that's a big team. दैट्स अ बिग टीम. पैन इंडिया इन्वॉल्व है. लॉट ऑफ एक्सपोजर मिलता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो. एवरी पर्क्स इज देयर. मतलब रात थोड़ी लेट नाइट काम करने पड़ते थे, बट एवरीवन हियर वाज डूइंग विद पैशन. But good thing which I learned in EY or a Big Four is an Excel. So I have a good control on Excel. And when I started, I was like on every employer और उनका daily report आता sales का कि I need in this format, this color, that's it. And they used to think कि अरे सर report तो report है, ठीक है, and you can understand कि ये कौन से font में difference कहाँ पे है. So वो जो minute चीजों पे है, this helps you in establishing your company protocol. And ENY may I have learned one thing also good, I think which everyone should do in the business is a process. SOP हम लोग कहते थे Okay. कि आपके जो भी बिजनेस के प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेशन मोड पे डालो. हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बड़ा बाजार, कैलकाटा मार्केट या फिर लाला कंपनी हमने जो बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो बॉस है वही डिसाइड करे. बट एसओपी जो हमने कंपनीज में सीखी है, वहां पे कहते हैं कि आपकी ना हर कंपनी की एक पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो कौन देखेगा. एंड दिस इज डिफाइंड स्टैंडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने बोलते हैं, एसओपीज. जब आप ये डिफाइन कर देते हो अपने बिजनेस का तो बहुत इजी हो जाता है. जो हर्षा यू वाज आस्किंग, ऑफ कोर्स देयर वर चैलेंजेस, ठीक है. व्हेन वी वर गोइंग टू द क्लाइंट, उस समय एसएमएस क्या होता है लोगों को ही नहीं पता था. टुडे एवरीवन नोज ओटीपी क्या होता है, एसएमएस क्या होता है. हम लोगों ने उसको ओवरकम किया, लोगों को एडुकेट किया. द जर्नी हैज बीन फैबुलस. द फर्स्ट एमएनसी हमने बहुत स्मॉल स्मॉल क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, 2-3 months. बट ऑन वन एनवायरनमेंट डे वी थॉट लेट्स डू अ कैंपेन to promote how people can go digital. And that changed everything. The first MNC call we got from Tata, and we onboarded Tata Motors. And then we never looked back, to be honest. We onboarded that month Ola Cab, ITC, Umami, HUL. So lot of brand we have onboarded. So that has been a good journey. And touch wood with God blessing. So your journey has been really inspiring, Deepak, and people get motivated. So I just want to, know, do you feel or miss those days, or at times do you get a thought in your mind ki I should have gone back to CA practice? At times in life there comes a point when you're feeling low or there are a lot of challenges,
बीइंग एन एंटरप्रेन्योर समझ भी नहीं आता है कि क्या करें, तो कभी कभी ऐसा माइंडसेट या थॉट चलता है कि इससे ज्यादा मैं प्रैक्टिस ही करता जो मेरा डोमेन है. सो डू यू गेट दोस थॉट्स? See, I would be honest on that. क्योंकि मेरा पैशन ऑलवेज था कि मेरे को मार्केटिंग करना है. And when I entered into a CA practice firm, I realized कि this is not my expertise. क्योंकि वो कहते हैं ना कि CA में लोग पूछते हैं, इतने सारे लॉज है, रेगुलेशन है, इनकम टैक्स प्रोविजन चेंज होते रहता है. जैसे पहले 5 लाख पे टैक्स नहीं लगता था, अब 12 लाख पे टैक्स नहीं लगता है. So when you meet a client, they ask कि अच्छा मेरा इस पे टैक्स लगेगा क्या? And I really wonder, मतलब being a CA to remember all those provision कि कैपिटल गेन कब लगेगा, कौन से सेक्शन में. मैं एक दो बार ट्राई किया हूँ अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने का, बट वो इनकम टैक्स के फाइलिंग में इतना फॉर्म्स एंड क्लॉजेस होता है ना. बीइंग अ सीए मुझे लगता है कि इट्स नॉट इजी. Yes. So I would not like to go back to practice Okay. because I am enjoying my work and passion, and also sharing with you, Arsha, I believe on localization. So I've started an initiative called Pledge Vocal for Local, called Love Desi, where I want to help the Indian companies or the local companies in marketing. क्योंकि आपने कहते हैं ना कि if you are going to Paris, Italy, Germany, and you want to eat roti, रसगुल्ला और वड़ा पाव, will not look good. Similarly, अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, तो आप इंडियन वड़ा पाव खाओ, ठीक है, जो कि 10-15 रुपए का है, rather than a McDonald's burger, which is 200 rupees. I'm not against globalization, but I favor localization. So that's a very good thought, and I'm sure you will excel in your new project, Lantisi. Thank you, Arsha. So it was nice having you over, and thank you for your time. I'm sure हमारे व्यूअर्स ने आज बहुत कुछ सीखा होगा या अपनी स्टोरी को दीपक की स्टोरी से रिलेट किया होगा. So thank you, Deepak, for gracing our show. Thank you. So thank you guys for watching our show. Please like, share, and subscribe. I need your love and support. Show me some love, please. And wait for my next podcast because we have someone who is from healthcare, who is a qualified chartered accountant, but doing something great in the healthcare industry. So stay tuned, and I will let you know the dates when my. I will let you know when my podcast will be coming soon. I think I know him. So stay tuned to my channel. Bye bye.